Hello students, this video lecture of electrical machine is based on the transformer phasor diagram, in which we will study the phasor diagram of an actual transformer, and we will understand that how the actual transformer, the phasor diagram of actual transformer is designed. So let's move on the first slide. So the first thing is the equivalent circuit. To understand the phasor diagram of a transformer, we must know about the character of its equivalent circuit. कैसे equivalent circuit का character है, कैसे equivalent circuit को हम use कर रहे हैं phasor diagram draw करने के लिए, we have to be very careful with that step. Okay, so one thing which is a very important thing in the case of the to draw the phasor diagram of any quantity, anything is there, that we have to be very careful with the equations. अगर हमें इक्वेशन आती है तब हम फेजर डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. सो देयर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. दो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें दिए गए हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में हम केवीएल और केसीएल की हेल्प से इक्वेशंस को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो जब हम प्राइमरी पे साइड पे हम जा रहे हैं, तो एट प्राइमरी साइड फर्स्ट थिंग इज आई नॉट इक्वल्स टू आई डब्ल्यू प्लस आई एम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन for no load current. So no load current is consist of two components. First one is IW, the wattful component, which is responsible for the core loss. Sometimes it is also represented by IC. कहीं कहीं इसको IC से भी represent करते हैं. और IM is the current which is responsible for the magnetization or responsible for the flux generation. तो इसको IM मैग्नेटाइजेशन करंट भी बोला जाता है. तो I नॉट इक्वल्स टू IW प्लस IM. नेक्स्ट प्राइमरी साइड पे ही अगर KCL फिर से अप्लाई किया, सो I1 इक्वल्स टू द प्राइमरी करंट इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I नॉट. I नॉट इज द नो लोड कंपोनेंट एंड I1 डैश इज द काउंटर बैलेंसिंग करंट वेयर I1 डैश इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाइड बाय I2. वी आर फैमिलियर विद दिस टर्म. ओके, नेक्स्ट वन इज when we apply the KVL on the primary side. जब हम प्राइमरी साइड में KVL को अप्लाई कर रहे हैं, then we will get V1 equals to minus of E1 plus I1 in bracket R1 plus J times of X1. A very important thing which is to be mentioned here, there's all the three equations are the phasor equation. These are not the algebraic equation. ये equation algebraic equation नहीं है, ये equation हमारे पास में phasor equation है. phasor equation means हर एक जो भी हमने algebraic word यूज़ किया हुआ है, I नॉट, इधर I नॉट, IW, IM, I1 डैश, I1, V1 माइनस ऑफ E1, ये सब algebraic सब phasor हैं. तो यहाँ phasor summation के लिए, so there is to be very clear the significance of minus of E1. तो ये हमें क्लियर करके रखना है कि माइनस ऑफ E1 का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है. इन केस ऑफ द सेकेंडरी सर्किट में सिंस देयर इज नो नोड, कोई भी नोड नहीं है, सो KCL हम अप्लाई नहीं कर सकते. देन ओनली वन थिंग इज द KVL. अकॉर्डिंग टू द KVL, the equation of E2 equals to like this, that is the summation of V2 plus I2 in bracket R2 plus J times of X2. so इन चार इक्वेशंस को हमें याद रखना है, और इन्हीं चार इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना है, पूरी की पूरी फेजर डायग्राम को प्लॉट करना है. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन द फेजर डायग्राम फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर. इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ द फ्लक्स एज ए रेफरेंस फेजर. तो फर्स्ट थिंग इज we have to consider the flux as the reference phasor. तो फ्लक्स को हमने क्या कंसीडर किया है, रेफरेंस फेजर कंसीडर करके रखा हुआ है. ठीक है, तो फ्लक्स को हमने एक सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट थिंग इज both the values of E1 and E2 lag behind the flux by 90 degree. We have stated that if phi equals to phi m sin of omega t, the equation of flux, then E1 and E2 बोथ की इक्वेशन हमारे पास में होगी E sin omega t minus pi by 2. That means E1 and E2 both lags the flux by an angle 90 degree. To more understand, you have to refer my previous lecture. ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं. सो
इफ फ्लक्स इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इफ अगर हमने फ्लक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है एंड वी हैव टू ड्रॉ E1 एंड E2 लैग फ्लक्स बाय 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमें E1 और E2 की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट IM will be in the direction of phase flux. Since magnetizing current is responsible for the flux generation, so the value of flux depends on the value of IM. तो जो डायरेक्शन हमने फ्लक्स की कंसीडर करी हुई है दैट विल बी सेम डायरेक्शन ऑफ IM. सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स एज पर आवर डायग्राम, ये जो फेजर डायग्राम हमने प्लॉट किया हुआ है, तो ये अगर फ्लक्स की डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन पे हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की डायरेक्शन मिलेगी. सो मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इन फेज विथ फ्लक्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द कोर लॉस current IW will be 90 degree leading with respect to IM. तो 90 degree leading कैसे दिखाएंगे, if this is the direction of IM as per our diagram, अगर ये डायरेक्शन IM की है तो इससे 90 degree leading means we have to move in the anti clockwise direction. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, IW की वैल्यू मिलेगी. One thing is to be very clear that the magnitude of IW is very small as compared to the IM. Core loss current, core loss की responsible, core loss depends on the value of current and our main task is to reduce the core loss. So रेजिस्टेंस को तो कम करना ही करना है, साथ ही साथ हमें कोर लॉस रेजिस्टेंस को हमें कम करना ही है, साथ ही साथ हमें करंट को भी कम से कम रखना है. इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ IM इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा दिखाया जाता है एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ IW. नेक्स्ट पॉइंट इज द फेजर सम ऑफ IM एंड IW इज I0 एंड द लो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. क्लियर. IW और IM का जो भी फेजर डायग्राम होगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम टेक्निक. तो IW और IM के पैरेललोग्राम जब भी हमने किया तो इसका जो फेजर समेशन होगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ I0. ठीक है, तो ये हमें I0 की वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट थिंग इज अब यहाँ पे फाई नॉट इज द एंगल बिटवीन IW एंड IM. फाई नॉट हमारे पास में एंगल होता है IW और I0 के बीच का एंगल. ठीक है. फेज एंगल एट नो लोड कंडीशन इज द एंगल बिटवीन IW एंड IM. दैट इज वाई IW equals to I0 cosine of phi naught and IM equals to I0 sin of phi naught, जैसा हमने प्रीवियस केसेस में पढ़ के रखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस अब सेकेंडरी साइड के लिए बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी साइड का कंसेप्ट हमें क्या दिया गया है, देयर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप इन IR2 एंड X2. जब सेकेंडरी वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तब हमें V2 की वैल्यू मिलेगी. तो V2 हमेशा E2 से कम होगा. ठीक है. V2 हमेशा E2 से कम होगा एंड इट शुड लैग विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ E2. तो E2 का डायरेक्शन हमने कैसा कंसीडर किया हुआ है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर किया हुआ है एंड वी हैव टू शो V2. सो V2 को लैग अगर दिखाना है देन विल अगेन मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट वॉज द डायरेक्शन ऑफ E2. ये हमारे पास में E2 का डायरेक्शन था और इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो यहाँ कहीं हमने V2 का डायरेक्शन ड्रॉ किया हुआ है जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर करके रखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर. वी आर कंसीडरिंग द फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग पावर फैक्टर. पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन द लोडिंग कंडीशन. लोड कैसा लिया हुआ है. फॉर लैगिंग पावर फैक्टर द लोड इज ऑफ RL टाइप एंड इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर द करेंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज. तो अगर वोल्टेज को लैग कर रही है करंट तो V2 का डायरेक्शन से हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करना पड़ेगा एंड दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द लैगिंग पावर फैक्टर वेयर करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई नॉट. तो यहाँ पे जो फाई नॉट है, फाई नॉट इज द एंगल बिटवीन V2 एंड I2 वेयर फाई नॉट इज इन लैगिंग बिहेवियर. नेक्स्ट थिंग इज अब
जैसे हमने इक्वेशन पढ़ के रखी हुई थी, V2 इक्वल्स टू व्हाट, V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 J टाइम्स ऑफ X2, उसी को हमें यहाँ प्रूव करना है, ये उसी के लिए फेज़र डायग्राम प्लॉट करना है। अब V2 का फेज़र हमने प्लॉट किया था, व्हेन वी ड्रॉ द फेज़र ऑफ I2 R2 फ्रॉम द टिप ऑफ द V2 के हेड से हमने I2 R2 का फेज़र ड्रॉ किया है। एक चीज़ याद रखने वाली है, I2 R2 इज़ द ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस always remains in phase with I2. So if this is the direction of I2, अगर ये हमने I2 का डायरेक्शन यहाँ पे माना हुआ है तो इसी के पैरेलल डायरेक्शन पे हमें I2 R2 दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ जो आप I2 और I2 R2 देख रहे हो, both are parallel to each other. I2 is current and I2 R2 is voltage drop. तो V2 के हेड से हमने I2 R2 का टेल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। Next point is drop I2 X2 will be at an angle of 90 degree with respect to I2. अगर ये हमारे पास में डायरेक्शन होना चाहिए, हमने कंसीडर किया है I2 का डायरेक्शन, तो इससे 90 डिग्री पे हमें I2 और X2 का डायरेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो I2 R2 के हेड से हमने I2 X2 एट एन परफेक्ट 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो in this case V2 plus I2 R2 plus I2 X2 will give the value of V2 according to as per this equation. तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें V2 की वैल्यू, V2 I2 R2 और I2 X2 की हेल्प से E2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो देयर आर द 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट हमें इसी तरीके से फॉलो करते आना है। नेक्स्ट टू कम इज फर्स्ट 11th point. In 11th point, we have to draw the I1 dash. I1 dash is counterbalancing current which having effect to neutralize the effect of I2. I1 dash I2 के effect को neutralize करने की tendency रखता है। That means both should be in anti-parallel direction. Anti-parallel means there will be the angle of 180 degree between both. तो अगर आपने I2 का डायरेक्शन जो भी दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास में I1 डैश का डायरेक्शन होगा, एंड वेयर I1 डैश इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाइड बाय I2, ये हमने अभी देख के रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फेजर सम ऑफ I1 डैश एंड I0 गिव द टोटल प्राइमरी करंट। सो इधर पे हमारे पास में अगेन द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वी हैव ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम I1 dash and then I0, it will give the phasor summation of this will give the value of I1. तो I1 का हमें फेजर इस तरीके से मिला, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू ड्रॉ द फेजर ऑफ V1। अब V1 के फेजर के लिए हमें V1 की इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो V1 की इक्वेशन हमारे पास में कैसे सेटिस्फाई होगी, तो देखें V1 की इक्वेशन के लिए पहले हमने देखा कि we need माइनस ऑफ E1. सो E1 का डायरेक्शन कैसा था, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, देन माइनस ऑफ E1 विल बी परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स वी अगेन ड्रॉ द एंटी पैरेलल हमने एक ड्रॉ करा हुआ है। दैट मीन्स E1 का डायरेक्शन नीचे है, तो इससे 180 डिग्री पे जैसे ही हमने एक फेजर ड्रॉ किया, दैट हैविंग द नेगेटिव साइन, नेगेटिव फेजर हमारा माइनस ऑफ E1 का मिल जाएगा, ठीक है। इस माइनस ऑफ E1 में वी हैव टू ऐड I1 इंटू R1। सो I1 R1 is the drop across resistance and the responsible current will be in the same direction. So if this is the direction of I1, so in parallel it should be the direction I1 into R1. तो I1 R1 के ही पैरेलल डायरेक्शन पे हमने I1 की डायरेक्शन के पैरेलल ही I1 R1 को ड्रॉ किया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज I1 into X1. Again the angle between I1 and I1 X1 should be equals to 90 degree. तो अगेन हमने हेड टू टेल मेथड की हेल्प से इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है। नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइनस E1 we have to draw a phasor up to the end point of I1 X1 that will give the phasor diagram of V1 according to
द इक्वेशन v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ e1 प्लस i1 r1 प्लस j टाइम्स ऑफ x1. So there are 16 number of steps we have to follow and we will draw the phasor diagram accordingly. ठीक है, तो ये हमें 16 नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने एक तरीके से बना के रखे हुए हैं और यही हमें फॉलो करने हैं और आसानी से हम फेजर डायग्राम को समझ सकते हैं. अब दिस वाज द एग्जांपल ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर. नाउ मूव ऑन द यूनिटी पावर फैक्टर. हाँ, वन मोर थिंग, द एंगल बिटवीन these are the steps you have to follow in each and every condition. Okay, this and after that this one. Clear? Next one is the phasor diagram for unity power factor. In case of unity factor, again हम समझते हैं कि कैसे हमने ड्रॉ किया था. पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट वाज वी हैव टू ड्रॉ फाई एज ए रेफरेंस फेजर. फाई को हमने कैसे ड्रॉ किया? एक रेफरेंस फेजर के ड्रॉ किया हुआ है. देन E1 एंड R1 विल बी एट एन एंगल 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द फेज एंगल फाई. देन आफ्टर V2 E2 से क्या कर रहा होगा? लैग करता दिखाई पड़ रहा होगा. देन अब यहाँ याद रखने वाली बात है, इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर there will be no lagging between V2 and I2. In unity power factor, V2 and I2 will be in same phase. So at the direction of V2, I2 will also exist. तो V2 की ही डायरेक्शन पे I2 क्या कर रही होगी? एग्जिस्ट कर रही होगी. ठीक है, अब उसी डायरेक्शन पे हमें क्या मिलेगा? I2 इंटू R2 मिलेगा और इससे 90 डिग्री पे हमें I2 इंटू X2 मिलेगा. एंड अगेन V2 प्लस I2 R2 plus I2 X2 will give the value of E2. Now next thing is what? The flux, the IM will be in the same direction of flux. IM और flux का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा लास्ट टाइम की तरह. और IW का डायरेक्शन इनसे क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा. एंड द फेजर डायग्राम ऑफ IW एंड IM will give the value of I नॉट हमें यहाँ से मिल गया है. तो ये स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज द एंटी पैरेलल डायरेक्शन ऑफ I2 इज I1 डैश एंड द फेजर सम ऑफ I1 डैश एंड I नॉट इज द वैल्यू ऑफ I1. ठीक है, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द फेजर ऑफ V1. फॉर फेजर ऑफ V1 वी फर्स्ट नीड द वैल्यू ऑफ द फेजर ऑफ माइनस ऑफ E1. So minus of E1 is the phasor just opposite to the phasor of E1. तो E1 का just opposite phasor हमें minus of E1 मिला. अब I1 R1 will be parallel to the direction of I1. I1 के direction के parallel I1 R1 है. Cause I1 R1 is the voltage drop across resistance, which will be the parallel which will be in phase with the current. And I1 X1, the drop across reactance, and the drop across reactance and the corresponding current at an angle 90 degree with each other as per the previous case. और यहाँ पे हमारे पास में V1 का डायरेक्शन आ गया. तो ये स्टेप्स हमने वही स्टेप्स फॉलो किए हैं एंड वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर. ये केस वही है जैसे पहले आपने फाई ड्रॉ किया, देन आफ्टर E1 का डायरेक्शन, देन IM इंटू I नॉट, देन ये डायरेक्शन आपने फॉलो किया. जस्ट प्रीवियस केस को ही हमने कंसीडर करके रखा हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज अब इधर पे क्या सिचुएशन दी गई है? फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर द वैल्यू ऑफ करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल φ2. तो लीड्स द वोल्टेज, तो आप देख रहे हो φ2 जो भी है, φ2 कैसा है? I2 का डायरेक्शन φ2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स I2 लीड्स द वोल्टेज एंड द लीडिंग एंगल इज φ2. ठीक है, अब यही चीज़ वही फिर से कंसेप्ट, V2 के हेड से हमें I2 R2 ड्रॉ करना है एंड द I2 R2 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ I2. तो I2 R2 और I2 के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री. बोथ शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. नेक्स्ट थिंग इज 90 डिग्री
and the value of E2. Again, there is only the change of the direction of current I2, nothing else. I2 का ही direction change हो रहा है. Either we are talking about the leading power factor, lagging power factor, or the unity power factor. Only the value of I2 changes. I2 की value change हो रही है. Accordingly, all the phasor diagrams changes. उसी के अकॉर्डिंग सारे phasor diagram change हो रहे हैं. Otherwise, initial steps are nothing but same. Next one is, what should be the next? Next, we have to know about the character of phasor I1, and for that we need I1 dash phasor, और I1 dash phasor और I2 के बीच में कितना होगा 180 डिग्री का. That means both should be anti parallel to each other. Again, the phasor summation of I1 dash and I0 will give the value of I1. ठीक है. अब हमें वोल्टेज V1 के फेज़र के लिए बात करनी है. तो V1 का फेज़र कहाँ से आया? माइनस ऑफ E1. देन ड्रॉ I1 R1 फेज़र. I1 R1 फेज़र will be parallel to the direction of I1, then I1 X1, and after that V1. So you have to follow these 16 number of steps. These are the simplest steps to draw the phasor diagram of a transformer of any condition. किसी भी कंडीशन के लिए हम फेज़र डायग्राम को इन्हीं 16 नंबर ऑफ स्टेप से ड्रॉ करेंगे. स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ही कंसीडर कर सकते हैं कि हर आपको स्टेप ध्यान रखना है, उसी स्टेप को फॉलो करते चले जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेज़र डायग्राम आप किस तरीके से बना सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट the phasor diagram of transformer. We will meet soon.